students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study animals in groups. We already know different types of animals, living places of domestic and pet animals, animals classification on the basis of food they eat. We will know living in groups, behaviors of animals, useful animals interactions, animals past, animal hair. Living in groups. Animals form different groups to increase their chance for survival. Survival would be much more difficult if some animals lived on their own rather than in group. Each animal group moves together as a team. Mostly the oldest member of the team performs the team leader. Most of the animals live in groups to protect each other from harsh climatic conditions, defend themselves against enemies, look for food or for possible partners. The babies of the group are trained in the way of life. They learn many things while staying in a group. Okay, देखिए एनिमल्स जो होते हैं जब वो ग्रुप में रहते हैं तो उनकी जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं. ओके, जो लीडर होता है वो सबसे ओल्डेस्ट होता है एनिमल में. अगर एनिमल्स की कोई ग्रुप है और उस ग्रुप में जो एनिमल सबसे ज़्यादा ओल्ड एज होगा वो उसका लीडर होगा. जो बेबीज़ होते हैं उसमें उन्हें ट्रेन किया जाता है कि किस तरीके से लाइफ को लेना है, किस तरीके से एनिमीज से लड़ना है. ओके, जब ये ग्रुप में होते हैं तो ये फाइट बैक कर पाते हैं. लेट अस टॉक अबाउट सम ग्रुप ऑफ एनिमल्स. अ ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड अ प्राइड. अ प्राइड कंसिस्ट ऑफ 2 or more adult lions, several lionesses and their cubs. In a pride, the lioness hunt. An injured lioness who is unable to hunt lives on meat brought by the other lionesses on the pride. देखिए, जो लायंस का ग्रुप होता है उसे प्राइड कहा जाता है. एक प्राइड में 2 या उससे ज़्यादा एडल्ट लायंस होते हैं और सबसे ज़्यादा लायनेसेस और उनके कब्स होते हैं. ठीक है. नाउ जब एक लायनेस होती है जो भी प्राइड की वो हंट करती है और जब वो इंजर्ड हो जाती है तो उसकी प्लेस पे कोई और हंट करके लाता है और जो भी वो चीज़ हंट करके लाती हैं वो उसे फीड करते हैं. ओके. In an elephant herd, 10 or more female elephant and their calves live together. The oldest female in the herd leads the group. She takes decision and others follow her. She also protects the other herd members from enemies. देखिए, एलिफेंट का जो ग्रुप होता है उसे एलिफेंट हर्ड कहा जाता है. ओके, 10 या फिर उससे ज़्यादा एलिफेंट फीमेल एलिफेंट जो होती हैं और उनके काफ जो होते हैं वो एक साथ एक ग्रुप में रहते हैं. जो हेड होता है फैमिली की वो सबसे ज़्यादा एज्ड जो एलिफेंट होते हैं वो हर्ड के मेंबर होते हैं, हेड होते हैं. ओके, और ये सब जितने भी फीमेल एलिफेंट्स होती हैं ये एनिमीज से अपने हर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं. ओके. Now let's know the female elephants live while the group of some time and then moves away. जो फीमेल एलिफेंट्स होती हैं वो कुछ टाइम के लिए हर्ड के साथ रहती हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद वो वहाँ से अकेले मूव कर जाती हैं. ओके. A group of zebras is called a zeal. Zebras are grazing animals with an eye-catching coat of black and white stripes. In herd, the eldest female leads the herd. Adult males generally live alone in groups of other males. A zebra lives in a herd due to safety reasons, otherwise it would be extremely vulnerable. देखिए, जो ग्रुप होता है जेब्रास का उसे जील कहा जाता है. जेब्रास मोस्टली ग्रेजिंग करते हैं. ओके, ये ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं. इनकी बॉडी पे ब्लैक एंड वाइट कलर के स्ट्रिप्स होते हैं और जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो इस हर्ड को लीड करती है. ओके, जो एडल्ट मेल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, अकेले रहते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनी प्रोटेक्शन करनी होती है तो सब एक ग्रुप में रहते हैं. ओके. अ ग्रुप ऑफ मंकीज, गोरिल्लाज और चिंपांजीज इज कॉल्ड अ बैंड. Chimpanzees live in a group of 15 to 80. They are sometimes attacked by leopards. In such situation, the male gorilla protects other members by screaming, roaring and beating the chest with hands. देखिए, monkeys, gorillas और chimpanzees के जो
ग्रुप होते हैं उसे बैंड कहा जाता है। चिंपैंजीज जो एक ग्रुप में रहते हैं वो 15 to 18 नंबर होते हैं, और जब कोई भी ल्यूपार्ड इन पर अटैक करता है तो जो फीमेल चिंपैंजी होती हैं वो रोर करती हैं, ओके, साउंड स्क्रीम करती हैं इस तरीके से कि दूसरों को पता चल जाए कि आसपास डेंजर है, ओके। Bees also live in a group of swarm. A group of fish is called a school, and still live in still larger group called a colony. A group of owl is called a parliament. देखिए, bees का जो ग्रुप होता है उसे हम स्वान कहते हैं, फिश का जो ग्रुप होता है उसे स्कूल कहा जाता है, आंट्स जो होती हैं वो एक कॉलोनी में रहती हैं, और आउल्स का जो ग्रुप होता है उसे पार्लियामेंट कहा जाता है, ओके। Post to do, identify the animals in each group, name these groups. ये आप खुद से करेंगे। Behavior of animals, friendly animals. Some animals are friendly by nature. If you give them food, they will immediately come forward to eat it. Pets are animals kept by us as special friends. They are very friendly with us. They need our love, care and gentle handling. We play a lot with our pets. Domestic animals like cows, buffaloes and goats also live with us. Cow, dog, cat, goat, buffalo, parrot and pigeon are generally friendly in nature. देखिए, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि नेचर में फ्रेंडली होते हैं। अगर हम कोई भी तरीके का फूड उनकी तरफ रखते हैं तो वो इमीडिएटली उसे खाने के लिए आते हैं। पेट एनिमल्स जो होते हैं उन्हें स्पेशल फ्रेंड्स माना जाता है, ओके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं हमसे, उन्हें प्यार, केयर और जेंटल हैंडलिंग की ज़रूरत होती है, हम उनके साथ खेल सकते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कि काऊ, बफेलोज, गोट, ये सब भी हमारे साथ ही रहती हैं, ओके। काऊ, डॉग, कोट, कैट, गोट, बफेलो, पैरट, पिजन, ये सब क्या होते हैं? फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं, ओके। शाय एनिमल्स, there are many animals who run away when any person approaches them. They do not want to be friendly with humans. Rabbit, squirrel, tortoise, panda, deer, monkey and bear are shy in nature. These animals do not come near the food when they are around. We should not tease or hurt animals because in this way they will never become our friends. देखिए, कुछ एनिमल्स शाय भी होते हैं, जब भी हम उन्हें अप्रोच करते हैं वो कभी भी सामने नहीं आते हैं, जैसे कि आपके हो गए रैबिट, स्क्विरल, टॉर्टोइस, पैंडा, डियर, मंकी, बियर, ओके। अब ये एनिमल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, हम इनके आगे फूड भी रखें तो भी ये हमारे आसपास नहीं आएंगे। हमें कभी भी नहीं एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए, इससे हम इनके कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते हैं, ओके। हैव यू एवर सीन अ बर्ड राइडिंग ऑन other different animals? The birds which ride on the backs of cow and buffalo are called cattle egrets. The birds which ride on the backs of oxen and giraffe are called oxpeckers. देखिए, क्या आपने कभी भी बर्ड्स को किसी भी एनिमल्स की बैक पर राइड करते हुए देखा है? देखिए, जो बर्ड्स काव या बफेलो की बैक पे राइड करती है उन्हें कैटल एग्रेट्स बोलते हैं, और वो बर्ड्स जो कि ऑक्सन या जिराफ की बैक पे राइड करती है उन्हें ऑक्सपेकस बोला जाता है। These both kind of birds feed upon ticks and leeches found on the body of animals. In return, they alert these animals with shrill call when they see an enemy. देखिए, ये जो birds होती हैं ये इन एनिमल्स के ऊपर इसलिए बैठती है क्योंकि इन एनिमल्स पे जो टिक्स और लीचेस पाई जाती हैं उनको ये खाती हैं, और ये रिटर्न में इन्हें बताती हैं कि कोई भी एनिमल आसपास आ रहा है, डेंजर आसपास आ रहा है, तो उसके बारे में ये उन्हें बता देती हैं, ओके। Useful animal interaction. Animals are useful to us in many ways. They have accompanied the man since time immemorial. Man has used animals to his benefit. He gets many things from them like meat, honey, egg, milk, leather और silk etc. देखिए, एनिमल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं अलग अलग वेज़ में, ओके। ये हमें टाइम के साथ साथ हमारे लिए यूज़फुल होते आए हैं, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, हमें एनिमल से मीट, हनी, एग्स, मिल्क, लेदर और सिल्क मिलता है, ओके। Some domesticated animals gently lay a helping hand to people in their work. Bulls, drove carts,
Horses and camels carry people from one place to another. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस होते हैं उनकी जेंटली हेल्प करते हैं, जैसे कि बुल्स जो होती हैं वो कार्ट्स लेके चलती हैं, हॉर्सेस और कैमल्स जो होते हैं वो पीपल्स और हैवी गुड्स कैरी करते हैं. लेट्स नो, हनी इज़ एन एंटीसेप्टिक एंड इट हेल्प्स in the digestion of food. It is used in making medicines mainly for cough and cold. देखिए हनी जो है ये एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी हेल्प करती है और ये फूड डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. इससे मेडिसिन बनाई जाती है मेनली जब कफ और कोल्ड हो जाता है. ओके, एनिमल्स ईयर. ह्यूमन ear have three parts: the outer ear, the middle ear and the inner ear. Human ear collects sound, process them and send sound signals to your brain. Humans are mammal और mammals have ears. देखिए ह्यूमंस के पास ईयर्स होते हैं और ईयर्स के 3 पार्ट्स होते हैं: आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर. ओके, ईयर्स जो होते हैं साउंड को कलेक्ट करते हैं और उसे प्रोसेस करके सिग्नल्स हमारे ब्रेन्स जो हैं वो हमें भेजते हैं. ह्यूमंस जो होते हैं वो मैमल्स होते हैं और जितने भी मैमल्स होते हैं उनके ईयर्स होते हैं. ओके, देयर आर सम एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर्स येट दे कैन hear. A bird does not have an external ear. Instead, it has holes on both the sides of its head which help it to hear. देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके ईयर्स नहीं होते लेकिन फिर भी वो सुन सकती हैं, जैसे कि बर्ड्स के कुछ होल्स होते हैं जिनके थ्रू वो साउंड्स सुन सकती हैं. ओके, लेट्स नो, crickets hear using their legs. Sound waves vibrate a thin membrane on the cricket's front legs. Okay, crickets जो होती हैं वो अपने लेग्स को यूज़ करके हेयर कर सकती हैं, उनको साउंड वेव्स का पता चलता है. ओके, fish also have ears that cannot be seen. They can hear the sound made in water with their internal ears, but their ears do not catch sound well in the air. देखिए फिश की भी जो ईयर्स नहीं होती हैं, ईयर्स दिखाई नहीं देते फिश के. ठीक है, जो भी साउंड वाटर के अंदर होती है उसका उन्हें पता चल जाता है, लेकिन वो एयर में जब होती हैं तब वो सुन नहीं सकती हैं. लिजर्ड्स हैव होल एज ईयर्स. लिजर्ड्स के पास होल होते हैं एज ईयर्स. ओके, फ्रॉग हैज ईयर ड्रम ऑन द आउटर साइड ऑफ द बॉडी बिहाइंड द आई. आई के पीछे उनके पास ईयर होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो सुन सकते हैं, ईयर ड्रम्स होते हैं. ओके, then snakes do not have external ears, therefore they do not hear the music of a snake charmer. Instead they probably respond to the movements of the snake charmer's flute. देखिए snakes के पास भी external ears नहीं होते हैं तो वो जो भी snake charmers की जो sound आती है, म्यूजिक आता है, उसे नहीं सुन पाते हैं, लेकिन वो उस पर रिस्पॉन्ड कर जाते हैं मूवमेंट करके. ओके, few insects like cicadas, crickets and grasshoppers have inner ears. ओके, इंसेक्ट्स जैसे कि कार्डास, क्रिकेट और ग्रास होपर्स है, इनके पास इनर ईयर्स होते हैं. ओके, एनिमल हेयर और फर इज फाउंड ऑन नियरली द एंटायर सरफेस ऑफ एनिमल स्किन. Animals that live in cold regions have soft and thick hair called fur or wool. Yak, musk ox and polar bear are some such animals. देखिए जो एनिमल्स कूल रीजन्स में रहते हैं उनके पास फर या फिर वूल टाइप के हेयर्स होते हैं प्रॉपर, जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं विंटर से. ठीक है, याक, मस्क ओक्स, पोलर बियर, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं. देयर हेयर कीप्स देम वार्म एंड इज कलर्ड सो दैट दे कैन camouflage. Camouflage is a way to hide appearance from enemies. देखिए उनके जो हेयर होते हैं उनको वो वार्म रखते हैं, प्लस वो वाइट कलर के होते हैं, तो इस वजह से वो स्नो में मिल जाते हैं, कैमोफ्लेज हो जाते हैं. ओके, और वो एनिमीज से उन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं. मैमल्स दैट हैव वेरी स्पार्स हेयर इंक्लूड द एलिफेंट एंड द हिप्पोपोटामस. दिस गिव देम द अपीयरेंस ऑफ बीइंग हेयरलेस. ओके, मैमल्स जैसे कि जिनके पास हेयर्स नहीं होते, जैसे कि एलिफेंट और हिप्पोपोटामस हो गया. ठीक है, ये हेयरलेस होते हैं. Now, the different patterns of animals are due to their hair of their skin. Okay, जो different patterns होते हैं animals के वो उनके hair और उनके skin की वजह से होते हैं. देखिए यहाँ पे thick fur, long hair, sparse hair.
दिखाया गया है। ओके, sum up. Most of the animals live in group. Animals live in groups to protect themselves against their enemies. The oldest female in the elephant herd leads the group. A zebra lives in herd due to safety reason, otherwise it would be extremely vulnerable. A group of fish is called a school. Ants live in still larger groups called a colony. Some animals are shy in behavior while some are friendly. Man has used animals to his benefits. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।